اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یہ مقدس دن ہماری زندگی میں دیا تاکہ تیرے اس مقدس دن میں ہم اکٹھے ہو سکیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں جتنے لوگ تیرے حضور میں آنے کے لیے آج تیار ہیں، اور خداوند جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ان کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور خداوند ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں بھی تیرے لوگ جمع ہوں تو اپنے لوگوں کے درمیان اپنا تخت لگاتا ہے۔ خداوند اپنی حضوری کو ظاہر کر، تو اپنے فضل سے سبھی کو برکت دے، اور تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے آج کی عبادت سے ہم سب برکت پائیں۔ خداوند تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے خیالات اور دھیان تیری طرف لگ جائیں، ہماری سوچیں تیری طرف ہوں، ہماری ساری دنوی فکریں اور پریشانیاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ اور خداوند آج جتنے لوگ کسی پریشانی، دکھ، تکلیف اور بیماری کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوں، اس عبادت کے وسیلے سے وہ معجزات کو حاصل کریں، تسلی اور اطمینان اور ایمان کی مضبوطی پائیں۔ خدا پاک روح تو ہمیں معمور کر، خدا پاک روح تو ہمیں تیار کر کے آج کی عبادت سے یسوع کے نام کو جلال ملے۔ کوائر کو بھی خداوند تیری حضوری میں لاتے اور دعا کرتے ہیں کوائر کے ایک ایک فرد کو چھو، تاکہ تیرے پاک روح کی مدد کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کرنے میں ہمارے اچھے رہنما بن سکیں۔ خداوند تو ہر ایک کے ساتھ ہو، اور خداوند ہم سب کے ایمان کو مضبوط کر۔ خداوند آج جہاں بھی تیرے لوگ عبادت کے لیے جمع ہوں، پوری دنیا میں یسوع کے نام کو جلال ملے، صرف یسوع ہی بڑھے اور انسان گھٹے، اور خداوند ہم سب تیرے بیٹے یسوع کے نام کی تعریف کرنے والے اور اس کی گواہی دینے والے بن سکیں۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔
अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमूआ है और हम सब मिलकर जब इसका इकरार करते हैं, अपनी ज़ुबान से इसको दोहराते हैं, तो हम अपने मसीही ईमान को मजबूत बनाते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक तुल्य कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 1 गाएंगे। वो धन है जो न मंदा है सलाह शरीरा दी। ज़बूर नंबर 1, ज़बूर नंबर 1, वो धन है जो न मंदा है सलाह शरीरा दी।
आए हम सभी दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर नासिर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। वसीम माइक उधर ही नासिर साहब को दे दीजिएगा। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने ये फजल किया कि आज हम इकट्ठे हो सके। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद इस जगह को एफसी कॉलेज को बरकत दे जहाँ पर हम इकट्ठे होकर इबादत कर सकते हैं। कॉलेज की फैकल्टी, अफसरान, इंतज़ामी अफसरान, स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है और जो तलबा और तालबात यहाँ पर पढ़ते हैं, खुदावंद उन सबको बरकत दे और उनके वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले। हम पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करे, खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे और अपने लोगों को ईमान में भी मजबूत करे। अब अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को तरक्की दे, बरकत दे और जिन मसाइल का सामना हमारे मुल्क को है, तेरे खुदावंद के बेटे यीशु के नाम से ये मसाइल भी ख़त्म हो और हमारा मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न हो सके। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा बुजुर्ग को बढ़कर तेरा लाख बार शुक्र करते हैं आज के इस खास वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में वक्त दिया कि हम तेरी हज़ूरी में जमा होकर तेरी इबादत तेरी परस्ती कर सकें। है खुदावंद जितने भी लोग तेरे हुजूर जमा हैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जो ऑनलाइन है खुदावंद उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद तू हम सबको अपनी पनाह और हिफाजत में रख। है खुदावंद हम अपने वतन अजीज़ के लिए तुझसे विनती करते हैं कि तू उसको हर किस्म की अंदरूनी और बैरूनी खतरा से बचा और महफूज रख। है खुदावंद उसमें अमन, चैन और हर तरह की बेहतरी इसमें नज़र आए। है खुदावंद हम इस कॉलेज के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसमें बहुत से मसीह घराने काम करते हैं और बरकत पाते हैं। उन सबको ये तौफीक दे तो बड़ी ईमानदारी, रोशनी के साथ और रीमी के साथ इस कॉलेज की में काम करें ताकि ये बरकत का बायस हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा उनको इंसानियों के साथ हो। खुदा शुक्रगुजार हैं कि तू हम मेहनत करते हैं सारे इदारों के लिए जो इस मुल्क में तेरे नाम के लिए काम कर रहे हैं। खुदा हम सब के साथ हो, सबको बड़ी बरकत और हिकमत अता कर ताकि वो तुझसे डरते हुए उनके ऐसा इंतज़ाम करें कि वो इदारे तरक्की करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। कोरोना वायरस के लिए हम कुछ उम्मीद करते हैं कि उसको ना सिर्फ हमारे मुल्क से बल्कि सारी दुनिया से उसको ख़त्म कर दे। ताकि तेरे लोग बड़ी आज़ादी के साथ तेरी इबादत पर प्रस्तुत कर सके। खुदाम आज के पैगाम के लिए हम सबको तैयार कर ताकि जो पैगाम कई तरफ से हमको मिलने वाला है खुदाम उसमें हम बरकत पाएँ। ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 126 गाएंगे। ज़बूर नंबर 126, कैदी सहूनी यहोवा ने लियांदे जद छड़ा। ज़बूर नंबर 126, ज़बूर नंबर 126, कैदी सहूनी यहोवा ने लियांदे जद छड़ा।
तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं और यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं तो मोजज़ात होते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ तेरी हजूरी में आ जाते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तू भला खुदा है, तू वफादार बाप है और तू अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें ये मौका बख्शा है कि आज तेरे इस मुकद्दस दिन में हम इकट्ठे हो सकें और इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। एक घराने की हैसियत से, यीशु के बदन का हिस्सा होते हुए, तेरे बेटे और बेटियां होते हुए आज हम यहां पर जमा हैं। खुदावंद हमारा जमा होना हमारे लिए बरकत का बायस हो और खुदावंद दुआ करते हैं कि हम सभी एक दिल होकर मुत्तफिक हो जाते हैं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम सभी अपने लिए मोजज़ात मांगते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक बीमारी और कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ बाप तू छू ताकि तेरे छूने से मौजज़ा हो, तो अपनी आग की कुदरत से मैं धोकर पाक कर दे। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से हमारी हर एक बीमारी जाती रहे। खुदावंद हम अपनी कोशिश अपने इख्तियार से नहीं, अपनी कुव्वत से नहीं, बल्कि यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं और यीशु के नाम से फतह पाते हैं और हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो जाए। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू और शिफा दे। खुदावंद तू मौजज़ा कर, हमारी हर एक जिस्मानी दर्द और तकलीफ बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए और खुदावंद हम शिफा पाए, हमारे घराने शिफा पाए, हमारी कलीसिया का हर एक फर्द शिफा पाए। खुदावंद तू फजल कर, तू रहम कर, तो अपने बेटे यीशु के नाम से छू और शिफा दे। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस मूसा के लिए, मिसेस मरियम परवेज और उसके नौमौलूद बेटे के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं, मिसेस फिरोजा यूसुफ सरोया के लिए दुआ करते हैं, मेलवन के लिए दुआ करते हैं, भाई एमैनुएल के लिए दुआ करते हैं, मिसेस नजीर जियाई के लिए दुआ करते हैं, मिसेस सरवर के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए, इसी तरह से भाई फरहान के बेटे के लिए दुआ करते हैं, भाई जमील के लिए दुआ करते हैं, मिसेस परवीन के लिए, मिसेस वर्जीनिया के लिए, इसी तरह से हम खुदावंद रॉबिन भाई की बेटी के लिए दुआ करते हैं और बहन फौजिया के लिए भी दुआ करते हैं। और भी जितने लोग किसी भी तकलीफ में मुब्तला हैं उन सबको तेरी हजूरी में याद करते हैं, तो अपने बेटे यीशु के नाम से इन सबको छू और शिफा बख्श दे। यूनुस साहब के लिए और उनके सारे घराने के लिए शिफा मांगते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती और बरकत मांगते हैं। खुदावंद तू हम सब के ईमान को मजबूत कर। भाई नदीम जॉर्ज के लिए भी दुआ करते हैं, तो अपने फजल से छू और शिफा दे। उनके बेटे के लिए शिफा मांगते हैं,
कोरोना पेशेंट्स के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। तो अपने फजल से कोरोना पेशेंट्स को छू तो शिफा मिल जाए। खुदावंद हमारे मुल्क में कोरोना की बीमारी और इस तरह डेंगू का जो वबा है यीशु के नाम से वो जाती रहे। तेरे फजल के वसीले से तेरे लोग महफूज हो जाएं। खुदावंद तू हम सब की हिफाजत कर, तो अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत में हमें महफूज कर ले ताकि ये वबा हमारे पास ना आने पाए। तेरा ये वादा है कि कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक ना आएगी। खुदावंद हम तेरे इस वादे को अपने लिए मांगते हैं। हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों की जिंदगियों में, हमारी कलीसिया की जिंदगी में तेरा ये वादा पूरा हो जाए और कोई वबा हमारे घराने के नजदीक ना आने पाए। खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं उनके लिए दुआ करते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन्हें औलाद की नेमत मिल जाए, तेरी मेरास उन्हें मिले। तूने छू और बरकत दे, तूने छू और शिफा दे ताकि खुदावंद तेरी तरफ से औलाद की नेमत उन्हें मिल सके। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चंद एक ज़रूरी एलानात हैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे मददगार हैं SOPs को फॉलो करने में, और कोरोना के हवाले से आप लोगों की जो सपोर्ट है वो हमें खुश भी करती है। हम दूसरे लोगों में बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारा चर्च जो है वो सबसे ज़्यादा फॉलो करता है SOPs को। तो आपकी शुक्रगुजारी के साथ साथ मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन SOPs को खुशी के साथ फॉलो किया करें, परेशान होकर नहीं, खुशी के साथ इसको फॉलो करें, क्योंकि ईमानदार लोग जो हैं वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। खुदा के कलाम लिखा है हमारा खुदा अबतरी का खुदा नहीं बल्कि ज़ब्त का खुदा है, यानी हमारा खुदा डिसिप्लिन्ड गॉड है और डिसिप्लिन को पसंद करता है। उसके लोगों की जिंदगी में डिसिप्लिन हो तो वो भी पसंद करता है। इसलिए ज़रूर SOPs को फॉलो करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इसको जारी रखें। ये आप लोगों की हमारी सेफ्टी के लिए है। और शादी की पुकार है। कैसर शहजाद परवेज मसीह, उम्र 34 साल, हालत कमवारा। FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी किरण अनवर मकबूल, दुख्तर अनवर मकबूल, उम्र 35 साल, हालत कमवारी, इंग्लैंड की रहने वाली के साथ 9 अक्टूबर 2021 को होना करार पाई है। और ये शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिसकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे, और जब क्वायर गीत गाती है तो ज़रूर उनके साथ मिलकर गाया करें ताकि हम उन गीतों को सीख सकें। आज का भी जो गीत है हम जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये गीत एक मरतबा हम पहले गा चुके हैं। गो के इसके अल्फाज आपके पास नहीं हैं, लेकिन आप अगर इन अल्फाज को गौर से सुनेंगे तो यकीनन आप लोग भी बरकत पाएंगे। तो आप लोग ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा, गौर से सुनिएगा कि हम इस गीत में क्या कहना चाह रहे हैं।
भी नहीं।
मन तेरा तन है खुदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तू मेरा है खुदा, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तू मेरा है खुदा, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरा मन है खुदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तू मेरा है खुदा, तेरे बिन कुछ भी नहीं। एक और इतला है, UCH हॉस्पिटल में मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स का आगाज़ हुआ है, जिसमें प्रैक्टिकल नर्सिंग की ट्रेनिंग है, लैब टेक्नीशियन की है, एक्सरे टेक्नीशियन हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हैं जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। आप उनके लिए यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में रब्ता कर सकते हैं, और जो बच्चे इन मेडिकल के शोबे की ट्रेनिंग्स को हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो वहाँ से इस फ़ायदे को हासिल करें। आइए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने। पुराने अहदनामे में से ज़बूर की किताब, और उसमें से ज़बूर 126 पहली आयत से छठी आयत तक, यानी मुकम्मल ज़बूर की तिलावत हम सुनेंगे। साम 126, ज़बूर नंबर 126। कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए हम सब खड़े होंगे, और इस तिलावत में हमारी रहनुमाई नोएल नफ्ताली करेंगे। पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब खुदावंद से उनके असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी ज़ुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस बरकत है। खुदावंद की हम करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 362, 362। खुदा के कलाम के लिए ए बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। गीत नंबर 362, गीत नंबर 362। इस गीत के ज़रिए से हम अपने आप को खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करेंगे। हम दुआया रूह में ये गीत गाएंगे। गीत नंबर 362, 362। ए बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे।
के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाबंद, तू ही अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है और इंसानों को इस्तेमाल करता है। मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। खुदा पाक रू तू बोल, खुदा पाक रू तू कलाम कर, ताकि लोग बरकत पाएं। खुदावंद, हम अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं। मैं अपनी कमज़ोरियों का इकरार करता हूँ। अपनी आग से भर दे, पाक रूह से मामूर हम सबको कर। पाक रूह का मसा यहाँ पर छा जाए। पाक रूह एक एक को छुए। खुदाए पाक रूह तो अपनी आग से हम सबको धो दे। खुदाए पाक रूह तो अपनी आग से हम सबको मामूर कर दे, ताकि आज के कलाम से हम बरकत पाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन। आज हमने ज़बूर 126 गाया, कैदी से हुनी यहोवा ने ले आंदे जद छड़ा। और इस ज़बूर की तिलावत भी अभी हमने सुनी है, और ये भी हैकल की ज़ियारत का गीत है। हम इस मौजू पर पहले भी सीख चुके हैं कि हैकल की ज़ियारत के गीत जो हैं वो कौन से हैं, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे। ये 15 मज़ामीर हैं 150 मज़ामीर में से, और 15 ज़बूर ऐसे हैं जो कि हैकल की ज़ियारत के गीत हैं। जब हैकल की तरफ लोग जाते थे तो हर एक स्टेप पर एक मज़मूर जो है वो गाया जाता था, और ये 7वां ज़बूर है, यानी 7वें स्टेप पर हम कह सकते हैं कि इसको गाया जाता होगा। और इस ज़बूर में गुज़श्ता मज़ामीर की निस्बत एक मुख्तलिफ हालात को पेश किया गया है। इस ज़बूर में शुक्रगुजारी हमें मिलती है, और शुक्रगुजारी एक खास हालात में की गई है। इस ज़बूर के ऊपर लिखने वाले का नाम मौजूद नहीं है, और ना ही इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस वक्त लिखा गया। लेकिन इस ज़बूर का मजमून जो है, इसका जो कंटेंट है, वो ये बताता है कि ये ज़बूर यहूदियों की असीरी से वापसी का है। यहूदियों को नबूकदनज़र असीर करके ले गया, और आखिरकार बाबल जो सल्तनत थी, जिसका बादशाह नबूकदनज़र था, उसको ज़वाल आया और फारस की हुकूमत गालिब आ गई। और उस वक्त फारस में खोरस बादशाह जो है, साइरस द ग्रेट खोरस बादशाह जो है, वो सल्तनत करता था। और उस दौर में इसराइलियों को वापस जाने का हुक्म सादर हुआ कि इसराइली लोग वापस अपने घरों को जा सकते हैं, अपने मुल्क को वापस जा सकते हैं। और ये ज़बूर जो है उन हालात को पेश करता है जब असीराने यहूदी जो यहूदा के असीर थे, वो वापस अपने घरों को आगे गुलामी से निकल आए, तो उसकी शुक्रगुजारी के लिए यह ज़बूर लिखा गया है। इसके मुसन्नफ के बारे में ज़्यादातर उलमा ये इत्तफाक करते हैं कि यह ज़बूर मुक़द्दस अज़रा काहिन ने लिखा, जो कि फ़की भी था, माहिर फ़की था, शरीयत की तशरीह करने वाला शख्स भी था, और लावी के घराने से था, हारून के घराने से था, और ये काहिन का दर्जा भी, रुतबा भी रखता था। और लोग कहते हैं कि ये मुक़द्दस अज़रा ने लिखा, क्योंकि मुक़द्दस अज़रा असीरी के दरमियान वापस आया। लेकिन इसके अलावा उस दौर में मुक़द्दस हिज्जी नबी, मुक़द्दस ज़िक्रिया नबी भी नबूवत कर रहे थे। जब असीरी से लोग वापस आए हैं, उस वक्त हिज्जी नबी ने भी नबूवत की, जब खुदा के हैकल की तामीर रुक चुकी थी, और ज़िक्रिया नबी ने भी नबूवत की जब तामीर दोबारा से शुरू हो चुकी थी। इसी तरह से नहमिया भी उसी दौर में दुआ करता है असीरी से वापसी के लिए। तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ये मुक़द्दस हिज्जी ने या मुक़द्दस ज़िक्रिया ने ज़बूर लिखा है, लेकिन ज़्यादा अमकान ये जाहिर किया जाता है कि मुक़द्दस अज़रा ने ये ज़बूर लिखा, क्योंकि मुक़द्दस अज़रा जब असीरी से वापस आया तो उस वक्त हालात और ज़्यादा असीरी से आने वालों के लिए बेहतर हो चुके थे। क्योंकि मुक़द्दस अज़रा जब वापस आता है तो उस वक्त खोरस के बजाय एक और बादशाह बन चुका था, अरतक्षश्ता बादशाह था, और उसने एक लेटर भी दिया अज़रा को कि जाओ और जाकर तुम्हारे लिए खजाने से, कौमी खजाने से भी मदद होगी, और तुम लोग जाकर खुदा के घर की तामीर करो। तो जो अज़रा की किताब है उसमें मुक़द्दस अज़रा जो है, अज़रा की किताब का 7वां बाब और 8वां बाब जो है,
وہ عزرا کی دوسری گروپ کے ساتھ واپسی کو ظاہر کرتا ہے. اس وقت لوگ گروہوں میں واپس آئے, اکٹھے واپس نہیں آئے جب رہائی ملی تو. اور عزرا جب واپس آتا ہے تو وہ خدا کی حمد کرتا ہے. تو اس لیے زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ زبور مقدس عزرا نے لکھا ہے. لیکن اس زبور کا جو الفاظ ہیں یہ نہ صرف بنی اسرائیل کی اسیری سے رہائی کو پیش کرتے ہیں, بلکہ یہ زبور خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک بڑا ہی برکت والا زبور ہے. کیونکہ یہ زبور نہ صرف جسمانی اسیری یا غلامی سے رہائی کو پیش کرتے ہیں, بلکہ اس زبور میں روحانی پہلو بھی ہے. یہ انسانوں کی گناہ کی اسیری سے رہائی اور نجات کی امید کو پیش کرتا ہے. اس لیے اس زبور کو شکر گزاری کا زبور بھی کہا جاتا ہے, اور اس زبور کو 7ویں نمبر میں زیارت کے گیتوں میں رکھنا ایمانداروں کے لیے کاملیت کی طرف بڑھنے کی طرف اشارہ ہے. خدا کی فضل کی کاملیت جو ہے اس کو یہ زبور, خدا کی شفقت, خدا کی محبت اس کے لوگوں کے لیے جو ہے اس کو پیش کرتا ہے. اور اس زبور میں جو مضمون ہے وہ خدا کے اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کاموں کا بیان ہے. اور یہ زبور جس پس منظر کو پیش کرتا ہے, اسرائیل کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اسرائیلی قوم کی زندگی میں بطور قوم ان کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوا تھا, جس کے پس منظر میں یہ زبور لکھا گیا ہے. اسرائیلی لوگ, یہودی لوگ جو تھے, وہ ایک پیشین گوئی کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے تھے. دانییل نبی کی کتاب میں یرمیہ نبی کی پیشین گوئی کو پیش کیا گیا, اور اس نے خدا کے حضور میں کیلکولیشنز کی. دانییل کی کتاب کے 9ویں باب میں کیلکولیشنز دانییل کرتا ہے, حساب کرتا ہے, جمع تفریق کرتا ہے کہ یرمیہ نبی نے ایک پیشین گوئی کی تھی 29ویں باب میں کہ خدا کے لوگ 70 سال اسیری میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد واپس آ جائیں گے. دانییل اس 70 سالوں کا حساب کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ کب خدا اس وعدے کو پورا کرے گا. اس لیے یہودی لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ یرمیہ نبی نے پیشین گوئی کی ہے اور آخر کار خدا کے لوگ دوبارہ سے رہائی پائیں گے. یہودی لوگ اسیری میں نہیں رہنا چاہتے تھے, غلامی میں نہیں رہنا چاہتے تھے. اور اگر ہم زبور 137 کو دیکھیں تو زبور 137 اسرائیلیوں کے دکھ کو بیان کرتا ہے. زبور 137 میں لکھا ہے, ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے سیون کو یاد کر کے روئے, وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا, کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا, اور کہا کہ سیون کے گیتوں میں سے ہم کو گیت سناؤ, ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں. زبور 137 ان کے دکھ کو بیان کرتا ہے جب وہ غلامی میں تھے. لوگوں نے کہا کہ تم لوگ بڑے گیت گاتے تھے تو ذرا ہمیں بھی سناؤ اپنے گیت. تو انہوں نے کہا کہ ہم پردیس میں کیسے گیت گائیں, کیونکہ ہم تو خدا کے گھر میں جا کر گیت گاتے تھے, ہم تو ہیکل میں جا کر گیت گاتے تھے, تو یہاں پر ہم پردیس میں خدا کے گیت کیسے گائیں. روتے ہیں, دکھ کرتے ہیں. اس لیے بڑی شدت سے وہ انتظار کر رہے تھے کہ یرمیہ کی پیشین گوئی کب پوری ہوگی. اور عزرا کی کتاب کا پہلا باب اس پیشین گوئی کو بیان کرتا ہے کہ وہ کیسی عجیب معجزہ تھا. شاہ فارس خورس نے ایک فرمان جاری کر دیا. اس فرمان میں شاہ فارس خورس نے کہا, خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں. شاہ فارس خورس کا یہ کہنا, جو کہ خود سورج کی پرستش کرتا تھا, اس کا یہ کہنا معجزہ تھا. شاہ فارس خورس یہ کہتا ہے کہ خدا آسمانوں کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں, اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں. یرمیہ نے یہ جو پیشین گوئی کی تھی اس میں ایک ممسوح فرما روا کا ذکر تھا کہ ایک بادشاہ ممسوح ہوگا, مسح کیا ہوا ہوگا,
लेकिन वो गैर कौम में से होगा। और जब ये कोरस बादशाह हुआ तो उसने उस पेशिन गोई के मुताबिक ऐलान कर दिया, जो कि इस्राएल के लिए एक बड़ा मौजज़ा था, कि एक गैर कौम का बादशाह ये कहे कि आसमान के खुदा ने मुझे सारी ममलकतें बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं खुदा के घर की तामीर करूं। हालांकि उसे कोई फायदा नहीं था, उससे कोई मुफाद नहीं मिलने वाला था, ना ही वो खुदा पर ईमान रखता था। लेकिन जब उसने ये ऐलान किया तो फिर ये एक बड़ा मौजज़ा रूनुमा हुआ और इस ज़बूर में ये अल्फाज लिखे गए कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और फिर वो इकरार करते हैं, खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। यानी ये ज़बूर खुदा के बड़े बड़े कामों की निशानदेही है जो खुदा अपने लोगों के दरमियान करता है। और इसका पहला हिस्सा, पहली आयत बयान करती है कि जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे। यानी उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये बड़ा मौजज़ा हो गया। दिस वाज लाइक अ ड्रीम, ये एक ख्वाब की तरह था जो पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन खुदा ने पूरा किया। इंसानों, ईमानदारों की जिंदगियों में बाज़ औक़ात ऐसे बड़े बड़े मौजज़े होते हैं जो इंसान खुद तवक्को नहीं करता, जो उनके लिए भी एक ख्वाब की मानिद होते हैं। और यहां पर यहूदा के लोगों ने कहा कि जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे। जब उनको असीर किया गया तो इस सोच के साथ असीर किया गया था कि ये कौम दोबारा से कभी इकट्ठी ना हो। शाह असूर ने जब इसराइल को असीर किया तो उसने इसराइल के 10 कबाइल को मुख्तलिफ जगहों पर फैला दिया ताकि ये दोबारा से कभी इकट्ठे ना हो सके। जब बाबल ने यहूदा के 2 कबाइल को, यहूदा और बिन्यामीन के कबीले को, जनूबी सल्तनत को असीर किया तो उसने तमाम जो पढ़े लिखे लोग थे, दानिशवर लोग थे, माहिर लोग थे, अलूम के माहिर लोग थे, कारीगर थे, उन्हें असीर किया ताकि ये लोग दोबारा से कभी भी तरक्की का ना सोच सके। और दोनों हुकूमतों ने, शाह असूर ने और शाह बाबल ने, इस सोच के साथ इसराइल को असीर किया था कि ये कौम कभी भी दोबारा से बहाल ना हो सके। लेकिन जब शाह फारस खोरस ने उन्हें दोबारा से ये हुक्म किया कि जाओ और खुदा के घर की तामीर करो, जो हैकल के ज़रूफ बाबल का बादशाह ले आया था वो भी वापस कर दिए। उनको कहा ये भी ले जाओ, पैसे भी ले जाओ और इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इनकी मदद करें, जो शाही खजाना है उनसे इनको मदद दी जाए, इनको रकम फराहम की जाए ताकि खुदा का घर तामीर हो। तो ये उनके लिए एक ख्वाब था कि बड़े बड़ी सुपर पावर्स ने जो कुछ सोचा है, उनसे बड़ी सुपर पावर कादर मुतलक खुदा ने उनकी जिंदगी में एक बड़ा काम किया है ताकि लोग उनकी जिंदगी में इस मौजज़े को देख सकें। हमारी जिंदगी में कई दफा ऐसे बड़े काम होते हैं जिनकी हम खुद भी नहीं तवक्को करते। और कलाम मुक़द्दस में नए अहदनामे में 2 ऐसे वाक़यात मिलते हैं। पुराने अहदनामे में भी बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनमें खुदा के लोगों की जिंदगियों में ऐसे बड़े काम हुए कि उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा था। मुक़द्दस लूका की अंजील 24वां बाब 11वीं आयत में जब यीशु के जिंदा होने की खुशखबरी दी गई खातीन को, तो उन्होंने कहा यह हमें कहानी सी लगती है, ये एक स्टोरी लगती है, नहीं हो सकता। इसी तरह मुक़द्दस पतरस को जब कैद खाने से रहाई मिली, सोया हुआ था, अमाल की किताब के 12वें बाब में सोया हुआ था, फरिश्ते ने उसको उठाया, उसको कहा जूती पहन और चल पड़ा। लेकिन समझता रहा मैं तो रोया देख रहा हूं। उसे यकीन ही नहीं आया कि खुदा जो है उसे कैद खाने से रहाई दे रहा है। फरिश्ता उसको शहर के मुख्तलिफ जगहों से ले जाता हुआ बाहर ले गया। उसे तब होश आया कि मैं तो हकीकत में एक बड़े मौजज़े को देख रहा हूं। बड़ी दफा हमारी जिंदगी में ऐसे काम होते हैं हमें खुद यकीन नहीं आता, लेकिन हमारा खुदा बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला खुदा है। तमाम ऐसे काम जो इंसानों के लिए नामुमकिन लगते हैं
तमाम ऐसे काम जो डॉक्टर्स के लिए नामुमकिन लगते हैं, तमाम ऐसे काम जो बड़े पढ़े लिखे साइंसदानों के लिए नामुमकिन मालूम होते हैं, बड़े बड़े आलमों के लिए नाकाबिल यकीन होते हैं, खुदा के लोगों की जिंदगियों में उनके जिंदा खुदा के वसीले से वकूफ पजीर होते हैं और वो खुदा की कुदरत को जान पाते हैं और वो ख्वाब की तरह लगते हैं। लेकिन खुदा उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े मोजज़ात से बड़े बड़े कामों को, बरकतों को हकीकत का रंग दे देता है, हकीकत का रूप दे देता है, ताकि लोग जान सकें कि उनका खुदा जिंदा है। जो पेशिन गोई 70 साल की गई, खुदा ने उसको एक गैर कौम के शख्स से पूरा किया, ख्वाब को पूरा किया, एक रोया को पूरा किया, जिसके लिए लोग हिसाब किताब करते थे कि कब होगी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके के साथ होगी। वो सोचते होंगे कि कोई मसीहा आएगा और वह हमें छुड़ाएगा। यीशु की पेशिनगोई को वो उन्हीं के साथ जोड़ते होंगे कि यही यसीरी है, यही मसीहा है। लेकिन उस वक्त खुदा ने एक ममसूफ फरमारवा ज़मीनी बादशाह से काम लिया और नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी में भी ये काम हुआ। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने आके कहा, मुकद्दस लूका के इंजील के पहले बाब में जब खुशखबरी सुनाई तो उसके लिए भी नाकाबिल यकीन थी। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसके पहले बाब में जबराइल फरिश्ता मरियम के पास आया और उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामिला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावंद खुदा और उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये सारी बातें नामुमकिन थी। इनमें से कोई भी बात मरियम के सामने पूरी होने वाली नहीं थी। ना तो मरियम उसको बादशाह के तौर पर देख सकती थी, क्योंकि बादशाह तो उस वक्त हेरोदीस था, हेरोदीस के घराने से ही बादशाह आना था। ना ही वो ये सोच सकती थी कि एक कुंवारी हामिला होगी। उसने कहा, ये क्यों कर होगा, क्योंकि जबकि मैं तो मर्द को नहीं जानती। तो एक फरिश्ते ने कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। मरियम ने कहा, ये हो नहीं सकता। मुकद्दसा मरियम इस बात को मानने के लिए मुश्किल और हेजिटेशन का शिकार है कि ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। लेकिन फरिश्ते ने कहा कि खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। जब खुदा की कुदरत उसके लोगों पर साया डालती है तो बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। खुदा की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें, खुदा की कुदरत के वसीले से बड़े बड़े काम देखें। और जब बड़े बड़े काम ईमानदारों की ज़िंदगी में होते हैं तो फिर गवाही पैदा होती है। यहाँ पर दो बातों का जिक्र किया ज़बूर नवीस ने। गैर कौमों में ये चर्चा होने लगा कि इनके खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। वो इसलिए कि जब वापस आए असीरी से तो गैर कौमों ने मुखालफत शुरू कर दी, सामरियों ने मुखालफत शुरू कर दी। सामरियों ने कहा कि शाह असूर बादशाह जो है असूर का, वो हमें यहां पर लाया था, हम भी तुम्हारे खुदा की इबादत करने लग गए हैं, हमें भी साथ हिस्सा दो, हम भी हैकल की तामीर में तुम्हारा साथ देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ हम बनाएंगे। वहां पर जो इर्द गिर्द के लोग थे, अज़रा की किताब के 4 बाब में इसका जिक्र मिलता है और फिर 3 बाब में भी इसका जिक्र मिलता है कि जब हैकल की तामीर शुरू हुई तो लोग बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे कि तामीर शुरू हो गई है। लेकिन उसी वक्त कुछ लोग थे जिन्होंने मुखालफत की और उन्होंने बादशाह को खत लिख दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी बागी कौम है, अगर इन्होंने घर बना लिया खुदा का तो ये फिर दोबारा से बागी हो जाएंगे, ना ये टैक्स देंगे, ना ये तुम्हारी बात मानेंगे। अगर ये दोबारा से इकट्ठे हो गए तो फिर दोबारा से ये तुम्हें शिकस्त देंगे, तुम्हें तंग करेंगे, सल्तनत में बदनज़मी पैदा हो जाएगी। उन्होंने खत लिखा और कुछ देर के लिए इस तामीर को रोक दिया गया। लेकिन फिर दोबारा से अज़रा नबी के वसीले से, मुक़द्दस अज़रा के वसीले से दोबारा से काम शुरू हुआ और दोबारा से दारा बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको जारी किया जाए काम को। और दारा बादशाह वही जो दानियल की किताब में हमें मिलता है,
जिसने वो शेरों की मांद में से भी जब जिस वक्त डाला गया, उस खुदा ने उसको निकाला, दानियल को जब शेरों की मांद में डाला गया, उसने दोबारा से हुक्म जारी किया। जब दोबारा से हुक्म जारी हुआ तो जो मुखालिफ थे उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, बादशाह भी यही कह रहा है, हमने तो बड़ी दरखास्त की थी कि इनको रोक दे, ये बागी हैं, ये बागी कौम है, ये तंग करेगी अगर ये खुदा का घर बन गया। लेकिन बादशाह ने ऑर्डर जारी किया। अज़रा की किताब के 6 बाब में लिखा है, उसने कहा कि मेरा ये हुक्म है कि शाही माल में से, यानी दरिया पार के खिराज में से उन लोगों को बिला तवक्कुफ खर्च दिया जाए ताकि उनको रुकना ना पड़े, और आसमान के खुदा की सोख्तनी कुर्बानियों के लिए जिस जिस चीज की उनको जरूरत हो, यानी बछड़े और मेंढे और हलवान और जितना घी और नमक और मैं और तेल और वो काहिन जो यरूशलेम में हैं बताएं, और वो सब बिला नागा रोज बरोज उनको दिया जाए। तो लोगों ने कहा, भाई ये क्या हो गया? गैर कौमों में चर्चा हो गया कि इनका खुदा इन पर बड़ी मेहरबानियां करता है। हमने ज़बूर गाया ना, गैर कौमां सी चर्चा सी कि इन्हां दा खुदा करदा है इन्हां दे उत्ते बड़ियां मेहरबानियां। आज भी आपने इसका तजुर्बा किया होगा। बहुत से लोग ईमानदारों से दरखास्त करते हैं कि उनके लिए दुआ करें, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इनके वसीले से मोजज़ात होते हैं। वो भी जानते हैं कि ईमानदार जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं। वो भी जानते हैं कि जिस खुदावंद की ईमानदार इबादत करते हैं उसके वसीले से मोजज़ात होते हैं। उस वक्त भी गैर कौमों में यह मशहूर हुआ कि इनका खुदा इनके लिए बड़ी मेहरबानियां करता है, इनके लिए बड़े बड़े काम करता है। और उसकी अगली आयत में, तीसरी आयत में, इस्राएल ने खुद भी इकरार किया। पहले लोग कहते थे कि इनका खुदा इनके लिए बड़े बड़े काम करता है, फिर उसके बाद तीसरी आयत में इन लोगों ने खुद ये शुक्रगुजारी की, खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। दूसरी आयत में लिखा है, खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। फिर तीसरी आयत में वो कहते हैं, खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, यानी वो खुद इकरार करते हैं कि हमारे खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, गवाही देते हैं। ईमानदारों को अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कामों के लिए गवाही देने की जरूरत है। उसका दूसरा हिस्सा शायद का, हम शादमान हैं, खुदा के मोजज़ात के लिए खुश होना। खुदा जब हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, उसकी गवाही देना, उसका इकरार करना और उसमें खुशी महसूस करना, यह बड़ा अहम है। ईमानदार खुदा के लोगों के जिंदगी में जो काम होते हैं उसकी गवाही देते और खुशी महसूस करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात लोग खुश नहीं होते, काम होते जाते हैं खुदा के, लेकिन हमारी जिंदगी में खुशी नहीं आती, शुक्रगुजारी नहीं आती, गवाही नहीं होती। बड़ी दफा कोई गल किसी को दसियो ना, अक्सर ऐसा होता है ना, हमें से बहुत से लोगों का ये तजुर्बा होगा, यार काम तो चंगा हो गया है लेकिन किसी को दसियो ना, है ना, ये अक्सर हो जाता है ना। चर्चा नहीं हम करते, गवाही नहीं दे सकते, खुश नहीं हो सकते, और यार होते गया पर इन्हें तो भी वो भी हो जाता तो भी बड़ी चंगा सी, यानी हम फिर उससे आगे का मांगना शुरू कर देते हैं। गवाही और खुशी जो है वो हमारी जिंदगी में नहीं आती। ईमानदारों की जिंदगी में जब खुदा बड़े काम करता है तो गवाही पैदा होनी चाहिए, बड़े बड़े कामों से खुशी पैदा होनी चाहिए। और नए अहदनामे में 2 वाक़यात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें खुदा के लोगों ने गवाही दी और चर्चा किया। हमें मुक़द्दस लूका की अंजील के 13वें बाब में एक वाक़या मिलता है। मुक़द्दस लूका की अंजील का 8वां बाब और 13वां बाब, इसमें 2 वाक़यात को हम 2 मोजज़ात को देखेंगे। 8वें बाब में एक बदरू गिरफ्तार शख्स को रहाई मिली, उसमें बड़ा लश्कर था। जब वो शिफा पा गया, रहाई मिल गई, शैतान की असीरी से निकल आया। ये भी एक असीरी थी, जिस तरह इस्राइल की असीरी थी, यहूदा की असीरी थी, इसी तरह से इस शख्स की भी असीरी थी। शैतान के बंधन में कैद था। लोग उसको जंजीरों से और बेड़ियों से कैद करते थे, लेकिन उन्हें तोड़ डालता था, और बदरू उसको बियाबानों में बगाए फिरती थी। यीशु ने जब मौजज़ा किया तो लिखा है कि वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। ये अल्फाज बिल्कुल वही है जिस तरह के उस ज़बूर में है।
खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। गैर कौमों में ये चर्चा होने लगा। ये दोनों लफ्ज यहां पर मौजूद है। चर्चा होना यानी मशहूरी होना, मशहूर करना, प्रोक्लेम करना, मुनादी करना कि मेरे लिए यीशु ने बड़े बड़े काम किए। वहां पर भी खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। ज़बूर 126 की तस्वीर हमें इस शख्स की जिंदगी में नजर आती है कि जब खुदा काम करता है तो हमें बताने की जरूरत है, हमें गवाही देने की जरूरत है। जब खुदावंद मौजज़ा करता है तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है। और इसी तरह मुक़द्दस लूका के इंजील के 13वें बाब में एक और मौजज़ा है। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 13वां बाब एक मफलूज औरत की शिफा है। एक कुबड़ी औरत जो सीधी नहीं हो सकती थी, 18 वर्ष से कुबड़ी थी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे तो वो सीधी हो गई। वो खुदा की तमजीद करने लगी, यानी खुश हो गई। लेकिन वहां पर एक शख्स था जो गुस्से में आ गया। लूका की इंजील 13वां बाब और 14वें आयत में लिखा है कि इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी खफा होकर कहने लगा, खफा हो गया कि जिनको काम करना चाहिए पर जिन दिनों में काम करना चाहिए उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। तो यीशु ने फिर उसको डांटा, उसको झिड़का, उसके साथ बहस की, आर्गुमेंट्स किए। यहां पर दो लोग हैं, शिफा पाने वाली औरत खुश है, एक दूसरा शख्स नाराज है। इसको शिफा क्यों हो गई है? सब्बत के दिन क्यों शिफा हो गई? बड़ी दफा जब हमारे इर्द गिर्द मौजज़ात होते हैं तो हम खुश नहीं होते। हम सिर्फ अपनी जिंदगी में मौजज़ों को देखना चाहते हैं और उसी का चर्चा करना चाहते हैं, उसी की गवाही देना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक औरत की जिंदगी में मौजज़ा हुआ। सरदार काहिम जो है, इबादत खाने का जो सरदार है, माफ कीजिएगा, इबादत खाने का जो सरदार है, वो गुस्से में आ गया कि क्यों इसकी जिंदगी में मौजज़ा क्यों हो गया, इससे बरकत क्यों मिल गई है। खुदा के लोगों को दूसरों की जिंदगी में भी बरकत पर खुश होना चाहिए। खुदा के लोगों को दूसरों की जिंदगी में मौजज़ात हों उसमें खुशी करनी चाहिए। खुदा के लोगों को अपने बहन भाइयों, अपने खानदान, अपनी कलीसिया के लोगों की जिंदगी में जब बरकतें नाज़िल हो रही हों तो खुश होना चाहिए और गवाही देनी चाहिए कि खुदा ने इनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। और उसके बाद तीसरे हिस्से में ज़बूर नवीस दुआ करता है, कहता है खुदावंद जनूब की नदियों की तरह और असीरों को भी, सयून के असीरों को वापस ला। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये लोग ग्रुप्स में आए, पूरे एक दफा नहीं आए वापस। लोग आ गए, एक पहली असीरी में से वापस आए, दूसरी असीरी जब दूसरी दफा कर रहे थे, क्योंकि मुकद्दस यिर्मयाह ने कहा था कि काम करो, इस मुल्क की जिसमें रहते हो उसकी सलामती चाहो, बीवियां करो, शादी करो, बच्चे हों, फैलो इस मुल्क में, इस वतन में फैलो, और 70 साल के बाद वापस जाओगे। तो उस वक्त तक लोगों का कारोबार जो था वो बढ़ चुका था, लोग खुशहाल हो चुके थे, तो लोग वापस सारे नहीं गए, लोग वहीं पर रह गए। तो ये फिर दुआ करता है उनके लिए कि खुदावंद जनूब की नदियों की तरह असीरों को वापस ला। जनूब के इलाके में नदियों की बड़ी जरूरत होती है। साउथ का जो इलाका है उधर पानी पहुंचाना बड़ा जरूरी है। हमारे मुल्क में भी जो साउथ का एरिया है उसमें पानी की बड़ी जरूरत है। तो यानी जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ले आ, यानी वो लोग जो उधर रह गए हैं उनकी इधर जरूरत है, उनको वापस ला, उनके लिए दुआ करता है, वो भी बरकत लें। हमने जिस बरकत को तजर्बा किया है वो भी बरकत लें। हमें जो लोग तकलीफ में हैं उनको, उनके लिए दुआ की जरूरत है। हमें उन लोगों के लिए दुआ की जरूरत है जो असीरान हैं, चाहे वो दुख में हो, तकलीफ में हो, गुनाहों की असीरी में हो, परेशानियों में हो, गुर्बत की असीरी में हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, परेशानियों में है, बीमारियों की गुलामी में जकड़े हुए हैं, दुख में है, मुसीबतों की गुलामी में है। मुसीबतों ने असीर किया है, शैतान ने असीर किया है, गुनाहों ने असीर किया है, गुर्बत ने असीर किया है। इन सारों के लिए दुआ की जरूरत है कि खुदावंद उन्हें भी असीरी से निकाल ले। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी कलीसिया के दुखी लोगों के लिए दुआ करते हैं,
अक्सर हमारी दुआ अपने लिए होती है, अपने घरानों के लिए होती है, अपने खानदानों के लिए होती है, अपने अजीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए होती है, अपने बुजुर्गों के लिए होती है। हमें उन लोगों के लिए दुआ की जरूरत है जो आज भी असीर हैं। असीरी मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, सिर्फ बाबल की असीरी नहीं थी, आज भी लोग असीर हैं। आज भी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में, गुलामी में हैं, बॉन्डेड लेबर है, मसीही लोग दुख में हैं। उन सब के लिए हमें दुआ करते रहने की जरूरत है। और उसके बाद 5वीं और 6ठी आयत में होप आ जाती है कि जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटेगा। ये लोग जो आगे थे ये अभी खुशहाल नहीं हुए थे, बड़ी तकलीफ में थे, फाइनेंशियली, माली तौर पर, मुआशी तौर पर दुख और तकलीफ का शिकार थे। फसल अच्छी नहीं हो रही थी, सब कुछ तबाह हो चुका था, दोबारा से बहाली थी। दोबारा से बहाल होना इतना आसान नहीं होता। जब एक दफा शख्स कोई गिर पड़े तो उसके लिए खड़ा होना मुमकिन जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन लगता है। और यहाँ पर वो उम्मीद देता है लोगों को कि जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने फूले लिए हुए शादमान लौटेगा, वो खुशी के साथ वापस आएगा। बहाली की उम्मीद खुदावंद में बाकी थी कि जब खुदावंद साथ है, जो दुखों में से गुजर रहे हैं वो रहाई पाएंगे। जब हम दुखों में होते हैं तो हमारी ये उम्मीद है कि खुदावंद हमारे साथ होता है। हर दुख के बाद खुशी मिलती है, हर दुख में से गुजरने के बाद जलाल होता है। खुदावंद यीशु मसीह दुखों में से गुजरे, जलाल की हालत को पहुंचे। शागिर्द दुखों में से गुजरे, जलाल की हालत को पहुंचे। मुकद्दसीन ने दुख उठाए, दाऊद दुख में से गुजरा, बरकत पाता है। यूसुफ दुख में से गुजरा, बरकत पाता है। याकूब दुख में से गुजरा, मेहनत की, अपने मामू के पास, आखिरकार बरकत पाई। इब्राहिम दुखों में से गुजरता है, बरकत पाता है। खुदा के लोग दुखों में से गुजर कर ही बरकत पाते हैं। हर शाम के बाद सुबह है। इसी तरह इस ज़बूर में भी उम्मीद दिलाई गई है कि जो दुख में से गुजर रहा है, यीशु में वो बहाली पाएगा, यीशु में उसे बरकत मिलेगी, यीशु में उसे जलाल पाने का मौका मिलेगा। इस दुनिया में जितने लोग इस वक्त असीरी की हालत में हैं, जितने ईमानदार असीरी की हालत में हैं, दुख में से गुजर रहे हैं, ये ज़बूर हमें उम्मीद दिलाता है कि खुदावंद बड़े बड़े काम करने वाला है। हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने वाले हैं, हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। यहाँ असीरी से रहाई असल में डिलीवरर्स को बयान करती है, निजात को, मखलसी को बयान करती है, जिसका इस्राइल शिद्दत से इंतजार कर रहा था। इसी तरह हम में से भी हर एक डिलीवरेंस चाहता है, मुश्किलात से, परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफों से रहाई चाहता है। आज का कलाम हमें तसल्ली देता है कि हमारा खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। उन बड़े बड़े कामों को, उन बड़े बड़े मौजज़ात को अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए आए आज अपने आप को तैयार करें। खुदावंद की मेज पर आकर उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए तैयार हो जाएं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। उन बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में दावत दें, खुदा को अपनी जिंदगी में दावत दें, खुदा के कामों को अपनी जिंदगी में होने दें, ताकि हम गवाही दे सकें कि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है और तू बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि तू बड़ा कादिर मुतलक अजीम खुदा है। तू बादशाहों का बादशाह है, तू हाकिमों पर हाकिम है, तू कुदरत और अख्तियार रखता है। तो अपने बेटे यीशु में इस दुनिया पर निजात को जाहिर करता है, मखलसी और रहाई को पेश करता है। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक की जिंदगी में ये बड़ा काम कर, हमें रहाई और मखलसी का तजर्बा बख्श दे। दुखों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, परेशानियों से रहाई का तजर्बा बख्श दे, ताकि हम अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को देख सकें और गवाही दे सकें और खुशी को पा सकें जो बड़े कामों के वसीले से आती है। खुदावंद तू हमें से हर एक को छू दे। आज हम तेरी मेज पर आने वाले हैं खुदावंद, आज हम तेरी मेज से मखलसी लेकर वापस लौटें, बड़े बड़े कामों की उम्मीद के साथ वापस लौटें। तू हम में से हर एक की जिंदगी में बड़े काम करने वाला है। खुदावंद तू हमें उसके लिए तैयार कर, हमारी जिंदगी उन बड़े कामों को देख सके।
उन मौजज़ात को देख सकें, मसीह यीशु के नाम से आमीन। इनको ले जाएं ज़रा जल्दी से कामना। चाबी आपके पास ही है गाड़ी की, जल्दी से ज़रा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दोबारा से दुआ करते हैं नासर साहब के लिए। आए हम सभी दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मतलब खुदा, तू मौजज़ात का खुदा है। अभी हमने सीखा है कि तू बड़े बड़े काम करता है। अभी हमने जाना है कि तू कुदरत वाला खुदा है। खुदा हम सभी मिलकर दुआ करते हैं, हम मुत्तफिक होते हैं, ईमान में मुत्तफिक होते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम को बरकत को मांग लेते हैं। खुदा हम अपना हाथ बढ़ा और नासर साहब को छू दे। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से शिफा आ जाए। यीशु के नाम में नासर साहब की सेहत नॉर्मल हो जाए। तेरा मौजज़ा खुदावंद मांगते हैं, अपनी आग की कुदरत के वसीले से मौजज़ा कर। खुदावंद तू छू, यीशु तू छू दे, यीशु तू छू और मौजज़ा कर। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और छू। खुदावंद अपनी आग नाज़िल कर। तेरी आग की कुदरत से नासर साहब का जिस्म धुल जाए। तेरी आग की कुदरत से तेरा बंदा शिफा पा जाए। खुदावंद तू रहम कर, तू मौजज़ात का खुदा है। तो अपने बेटे यीशु के नाम से मौजज़ा कर दे। तो अपने बेटे यीशु के नाम की कुदरत के वसीले से मौजज़ा कर। खुदावंद हम तेरे मौजज़े को मांगते हैं, तेरी कुदरत को मांगते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा और छू। खुदावंद तू छू और मौजज़ा कर। यीशु के नाम से सेहत नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम से नासर साहब की सेहत बहाल हो जाए। खुदावंद तू कुदरत को जाहिर कर, तू कुदरत को जाहिर कर। खुदावंद तेरा मौजज़ा मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 205, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। गीत नंबर 205, 205, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे।